Assalamu alaikum students, hope you all are fine and well. Dear students, we are reading the poem The Bangle Sellers, and dear students, as I have already given you the introduction of the poem and the poetess, let me repeat what the poem is all about, what is the central idea of the poem, and I would like to add some points about the poetess Sarojini Naidu. Dear students, the poetess Sarojini Naidu, you all may be knowing about her. It is She is called the Nightingale of India, and she was the first female president of Indian National Congress. She is known to have played an important role in the freedom struggle of India. Now, this was all about the poetess. Now, regarding the poem, dear students, as I have already told you, the poem describes three stages of Indian woman: as a maiden, as a bride, and as a middle-aged woman. When a woman passes through the different stages of her life, the color and design of her bangles also change accordingly. यानी ये जो पोइम है ये हिंदुस्तानी औरतों के तीन स्टेजेस के बारे में बात करती है। यानी पहले वो कंवारी होती है, उसके बाद उसकी शादी होती है और उसके बाद वो मिडिल एजड बनती है। और ये तीनों स्टेजेस जो है, यानी तीनों स्टेजेस में वो किस कलर की, किस डिज़ाइन की चूड़ियाँ पहनती है, किस मैनर की, किस तरीके की चूड़ियाँ पहनती है, यानी उम्र के साथ साथ औरतों की चूड़ियों का कलर बदल जाता है। दिस इज व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. Now, dear students, we have already discussed the first two stanzas. Now we'll be talking about the third and fourth stanza in this lecture, inshallah. Now let me read the very third stanza first. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. Now, some are like fields of sunlit corn. ये जो बैंगल सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी बैंगल्स को टेम्पल मेले पे लिया है, अपनी बैंगल्स की पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये अपनी इन चूड़ियों की पब्लिसिटी के लिए कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए कहती हैं, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. ये जो this stanza, it describes the very second stage of an Indian woman where she is a bride, where she has become a bride. अब ये जो stanza है, ये हिंदुस्तानी औरत जो होती है जब वो एक ब्राइड बनती है, जब वो एक दुल्हन बनती है, तो उस स्टेज को जाहिर करता है। ठीक है। द बैंगल सेलर्स आर सेइंग दैट सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न. हमारे पास कुछ चूड़ियाँ ऐसी है लाइक सनलिट कॉर्न, यानी लाइक सनलिट कॉर्न मीन्स आपने मक्की के खेत देखे होंगे. मक्की के खेत जो होते हैं, जब उन मक्की के खेतों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो कैसे चमकते हैं, वो येलोविश हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं. सो सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न. हमारे पास कुछ चूड़ियाँ ऐसी है, हमारे पास कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं, ऐसी कलर की चूड़ियाँ हैं, यानी लाइक सनलिट कॉर्न, यानी कॉर्न मक्की, मक्की जो होते हैं अनाज दाना, यानी मक्की के खेत जो होते हैं, आपने मक्की को देखा होगा, जब उन मक्की के खेतों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो कैसे चमकती हैं, उस कलर की चूड़ियाँ हैं हमारे पास. नाउ दीज kind of these bangles are for what? Meet for a bride on her bridal morn. ये जो इस किस्म की चूड़ियाँ हैं, ये बनी है, ये हमारे पास है, लेकिन किसके लिए है? Meet for a bride on her bridal morn. ये एक दुल्हन के लिए है, यानी इस किस्म की चूड़ियाँ जो है वो एक दुल्हन पहनती है, लेकिन कब पहनती है? On her bridal morn. Bridal morn. Morn is the short form of morning here. यानी दुल्हन जो होती है, दुल्हन जो बनती है, जब एक लड़की की शादी होती है, उसकी जो पहली सुबह होती है, जब उसकी शादी होती है, उसकी जो पहली सुबह होती है, तो उस सुबह पे ये इसी किस्म की, इसी कलर की चूड़ियाँ पहनती है. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. यानी ये इस किस्म की चूड़ियाँ बनी है एक ब्राइड के लिए, जिनको वो पहनती है इसी सुबह, शादी की सुबह जब वो पहनती है इन चूड़ियों को.
इस किस्म की चूड़ियों को. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear like her bridal laughter and bridal tear. Some like the flame of her marriage fire. कुछ चूड़ियां हमारे पास ऐसी है. Dear students, you might have observed, you might have watched the television, and where the tradition of Hindus etc. is shown or described, like जब इनकी शादी होती है, हिंदूज की जब शादी होती है तो वो उनका एक फायर होता है, वो आग होती है जिसके इर्द गिर्द वो फेरे लगाते हैं, चक्कर काटते हैं, जो फायर मुकद्दस मानी जाती है इनकी. तो सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर. ठीक है. तो कुछ चूड़ियां हमारे पास ऐसी है उस फायर के जैसी, जिस फायर के इर्द गिर्द वो घूमते हैं, जिस फायर के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हैं, जिस फायर को मुकद्दस मानते हैं. अब वो जो फायर होता है दैट्स लाइक रेड, वो रेड, येलो एंड रेड कलर का होता है. तो कुछ चूड़ियां हमारे पास ऐसी है, कुछ चूड़ियां हमारे पास, यानी कुछ चूड़ियों का जो कलर है, सम ऑफ द बैंगल्स आर लाइक रेड, लाइक द कलर ऑफ मैरिज फायर, or rich with the hue of her heart's desire, or rich with the hue of her heart's desire. As we all know, dear students, that अब ये जो bride होती है, इसके as we all know that इसका जो हार्ट होता है, उसके हार्ट में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, उसके हार्ट में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी विशेस होती है. अब उसकी शादी होती है, ठीक है. और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर. अब उसकी शादी होने वाली है. नाउ शी इज गोइंग टू make a new house, she is going to make a new home, she is going to settle with her husband now. तो ये सारी ख्वाहिशें उसके दिल में होती है. और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर. ह्यू के माने हैं, ह्यू ऑल्सो मीन्स रंग, ह्यू ऑल्सो मीन्स ब्राइटनेस, इट मीन्स रंग, रोगन, सूरत. और रिच विथ ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर. अब ये जो लड़की होती है जिसकी शादी होती है, ये इसकी दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, ये बहुत सारी ख्वाहिशात इसके दिल में होती है. क्यों? बिकॉज शी इज़ गोइंग टू सेटल अ न्यू होम, and she is going to start her new family, she is going to live with her husband, and ये सारे passions उसके दिल में होते हैं, ये सारी चाहतें उसके दिल में होती है. इसीलिए कहता है और rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear. अब यहाँ पे ये जो ब्राइड होती है, ये जो दुल्हन होती है, किस किस्म की चूड़ियाँ पहनती है? टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर. यानी ऐसी चूड़ियाँ जो टिंकलिंग होती है. टिंकलिंग मतलब टिंकल कहते हैं जानकार को, टिंकल कहते हैं टनटनाहट जो होती है, चूड़ियों की टनटनाहट जो होती है. ल्यूमिनस मीन्स, ल्यूमिनस के मानिए इट मीन्स ब्राइटनेस, चमकीली. And tender means मुलायम, नरम, smooth, gentle we can say. And clear means transparent. ये चूड़ियाँ जो होती हैं, ये tinkling होती है, ये luminous होती है, ये tender होती है, ये clear होती है, जो ये bride पहनती है. Like her bridal laughter and bridal tear. Very important line. Like her bridal laughter and bridal tear. As we all know, dear students, that ये जो दुल्हन होती है, ये एक तो होता है इस दिन पे, एक तो ये बहुत ज़्यादा हंसती है, खुश होती है, like the bridal laughter. क्योंकि we know that ये बड़ी एक्साइटेड होती है, एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि इसकी शादी होने वाली है, क्योंकि शी इज़ गोइंग टू, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फैमिली, शी इज़ गोइंग टू शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशन विथ हर हस्बैंड एज वेल एज with her kids and kids all. And इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होती है. Like her bridal laughter and bridal tear. अब यहाँ पे bridal laughter भी कहा गया है और bridal tear भी कहा गया है. Now bridal laughter इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा excited होती है, बहुत ज़्यादा happy होती है, क्योंकि इसको एक नया घर start करना होता है. And bridal tear इसलिए कहा गया है क्योंकि because she is going to leave her parents, क्योंकि इसको अपना घर छोड़ना होता है और एक नए घर में इसको बसने की कोशिश करनी होती है, सेटल होने की कोशिश करनी होती है, जो बड़ा ही मुश्किल काम होता है इसके लिए. इसीलिए ब्राइडल टीयर कहा गया. यानी एक तो इस दिन पे खुश होती है
और दूसरी तरह बड़ी अपसेट होती है, बड़ा गम इसको होता है क्योंकि इसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, किसी दूसरे घर में इसको एडजस्ट करना होता है. So this was all about the second stanza. Now let us talk about the third, I think the fourth stanza. And it's like it's on the next page. It says, let me read this stanza first. Some are purple and gold flecked gray. She who has journeyed, she let me repeat it. Some are purple and gold flecked grays for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. Now, what is it all about? What does it say? This is the last and the fourth stanza of the poem. Now, dear students, this stanza, it tells us about the middle-aged woman. What kind of bangles does a middle-aged woman wears? It's yes, some are purple and gold flecked grey. ये जो बैंगल सेलर्स होते हैं ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ चूड़ियाँ ऐसी है जिनका कलर कैसा है. सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे. हमारे पास कुछ चूड़ियाँ जो है वो जामुनी रंग की है, पर्पल कलर की है. पर्पल मीन्स जामुनी रंग. Color intermediate between red and blue, we can say yes. And gold flecked grey. कुछ हमारे पास कुछ चूड़ियाँ हमारे पास ऐसी है जो गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे है, यानी ग्रे कलर की चूड़ियाँ और उसके ऊपर जो गोल्ड फ्लैक्ड के माने हैं, फ्लैग के माने हैं मार्क और डॉट विथ स्मॉल पैचेस ऑफ कलर, यानी जिसके ऊपर वो गोल्ड कलर के मार्क्स है. इस किस्म की चूड़ियाँ हैं हमारे पास. फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे. अब ये इस किस्म की चूड़ियाँ जो है, इस किस्म की चूड़ियाँ जो है वो किसके लिए हैं? उस औरत के लिए हैं, उस वुमन के लिए हैं जिसने अपनी ज़िंदगी का आधा रास्ता तय किया है, जिसने अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र काटी है. फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, यानी जिसने अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र काटी है, जिसने अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र मतलब गुजारी है. फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed, whose hands have cherished. This poetess, she's talking about this woman, this middle-aged woman whose hands have cherished. यानी ये ऐसी औरत होती है जो मिडिल एज्ड होती है. वी ऑल नो दैट. जब इसकी शादी होती है फिर उसके बच्चे होते हैं. whose hands have cherished, जिसके मतलब जो हाथ होते हैं उन हाथों ने बहुत सारे बच्चों को पाला होता है. उन हाथों से परवरिश होती है. चेरिश के मानी है पालना, चेरिश के मानी है पोसना, चेरिश के मानी है परवरिश करना. अपब्रिंग, फोस्टर, नरिश. whose hands have cherished, जिन हाथों ने बहुत सारे बच्चों को पाला होता है, परवरिश की होती है. whose love has blessed, जिसका लव बड़ा ही पाक होता है, जिसका लव बड़ा ही मुकद्दस होता है, मुबारक होता है, अजीम होता है. whose love has blessed, इसी वुमन के बारे में बात की जाती है. whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast. और क्या किया होता है? and cradled fair sons. Cradle, we all know that. Cradle means jula. It's like we can say hold gently and protectively. सहारा देना. Cradle we know. यथ इस कशीर पॉइंट मंजुल छ वनन. And cradled fair sons on her faithful breast. और मतलब ये ऐसी औरत होती है जब ये इस स्टेज में पहुंचती है, लास्ट स्टेज में पहुंचती है, ब्राइड के बाद जो स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या करती है? इस स्टेज में बच्चे होते हैं. इस स्टेज में उसके बाद ये क्या करती है? इन बच्चों को पालती है, चेरिश करती है, अपब्रिंग करती है. ठीक है. और ये जो लव होता है उसके बाद उन बच्चों को उनकी परवरिश करना, उनको पालना, इसका जो ये प्यार होता है ये बड़ा मुकद्दस होता है, बड़ा अजीम होता है. एंड क्रैडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट.
और उसके बाद उन बच्चों की, एक तो उन बच्चों को मतलब उनको जन्म देना, उसके बाद उनकी परवरिश करना, उनकी सही तरीके से परवरिश करना, एंड क्रैडल्ड हियर सन्स, उनकी परवरिश करना, सही तरीके से परवरिश करना, on her faithful breast. Now faithful breast means, it's we all know that. Now let me tell you the meaning of the word breast. It means of a woman's body that secrete milk after pregnancy. Now अब यहाँ पे faithful breast क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि the poetess is talking about this woman, इस औरत के बारे में, यानी जो अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल रही हो, जो अपने हस्बैंड के साथ वफादार रही हो. That's why faithful breast is, the word faithful breast is used here. And cradled fair sons on her faithful breast, यानी जो औरत हमेशा से अपने हस्बैंड के तई वफादारी निभाई है, यानी उस औरत की बात हो रही है जिसने हमेशा से अपने हस्बैंड के साथ वफादारी किया, उसको कभी धोखा नहीं दिया हो. एंड cradled fair sons on her faithful breast and serves her household in fruitful pride. और क्या किया है, और ये जो हाउसहोल्ड है, ये जो घर है, इसको बनाया होगा बड़े अच्छे तरीके से, इन फ्रूटफुल प्राइड, यानी फ़ख्र के साथ इस घर को तामीर किया होगा, फ़ख्र के साथ इस फैमिली को तामीर किया गया हो, यानी इस घर का ख्याल रखा हो, इसको सर्व किया गया हो. एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, फ़ख्र के साथ. एंड worships the gods at her husband's side. और क्या किया है, और ये उस औरत के बारे में बात की जा रही है जो अपने हस्बैंड के साइड में, उसके साथ साथ वर्शिप भी उसने की होगी, उसके साइड में वर्शिप भी की होगी, उसके साइड में उसने इबादत भी की होगी. किन की इबादत? गॉड्स की इबादत, देवी देवताओं की इबादत. So this was all about the poem. This is the end of the poem. Hope you all have understood it. Thank you. Goodbye.